हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई एम होपिंग that most of you who are joining us today have given the open mock test that was conducted by Drishy IAS. If not, no issues. The people who have already given this exam, for them it will be a good revision, है ना? It will be a discussion on where are the pitfalls, कहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है. For other people who are thinking about giving the exam that is going to be conducted on 18th, I'm hoping कि ज़्यादातर लोगों को आइडिया होगा. If not, let's just एक डिस्कस कर लेते हैं. So on 18th again there is a second open mock test that is going to be conducted by Drishy IAS. It will be offline as well as online, right? But from my suggestion, I would suggest, if it is possible, because it is completely free of cost and you are somewhere around our physical centers, है ना? आप जानते होंगे आपके आसपास में जो भी आते हैं, right? To try and go and give this exam in physical presence, right? It will be nearest experience to what you are going to face in the real exam on 24th of May. आज से exactly 132 days बचे हुए हैं, right? So it is also almost like a kickstart to the preparation of revision and all those things, right? It will give you a good understanding where are you progressing well, what are your strengths, what are your weaknesses. अगर गलतियां हो रही हैं तो किस तरह की हो रही हैं, कि आखिर से फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, more than 72% people are getting wrong. So where are they getting it wrong? What is it about those particular types of questions that is difficult for most people, right? And कहाँ पे आप उससे जो है उन 72% से थोड़ा सा एक कदम आगे निकल सकते हैं, right? Because after all it's a game of margins, right? है ना? तो this will be our discussion for today. Primarily it is about कि जो डिफरेंट हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चंस रहे हैं which were most wrong by most people, है ना? मोस्ट कैंडिडेट्स जो फर्स्ट वाले टेस्ट दिए थे, राइट? इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें डिसहार्टन नहीं होना है कि इसमें कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी अभी हम लोग देखेंगे, राइट? बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही नहीं, है ना? 100 में से 72 लोग अदर कैंडिडेट्स भी इसमें गलतियां कर रहे हैं, राइट? यस, what you will have to understand through this discussion and hopefully through your own revision, है ना, जो इसको आपको गाइड कर पाए कि कैसे ये गलतियां दोबारा ना हो. लाइक से फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन द फर्स्ट टेस्ट, सो व्हेन यू आर गिविंग द नेक्स्ट टेस्ट ऑन 18th, कैसे ऐसा हो कि ये गलतियां दोबारा ना हो, राइट? What are the things that you will have to keep in mind? Because no matter how much you have studied, how well you have prepared, if you are not able to recall it on 24th, it will be of no use, right? इसीलिए when like the option is there of physical, that is है ना, offline and online, right? So you are also having the opportunity and the preference for conducting online mode, right? You will have a link in the description here, in the comment box here. वहाँ से भी आप जाकर के ऑनलाइन भी दे सकते हैं. ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए फिजिकली जाना, छुट्टी हो पाना और भी घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कर पाना मुश्किल होता है. सो उनके लिए ऑनलाइन का भी सुविधा है. बट इफ इट इज़ पॉसिबल, डू एंड ट्राई एंड गिव इट ऑफलाइन मोड, राइट? सो अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स दैट आर हैपनिंग, व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन लुक एट दीज क्वेश्चंस, है ना, ताकि इस तरह की गलती ना हो, राइट? एंड what are the different aspects of these questions where you will have to क्या थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो लेट्स लुक एट इट. इसमें वी विल स्टार्ट विथ ये जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं लास्ट टेस्ट में, है ना, ये था एनवायरमेंट से. सब्जेक्ट एनवायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर इज 71. नंबर ऑफ पीपल 72% हैव गॉटन इट रॉन्ग. लेट्स लुक एट इट. तो यहां पे देखिए, तो इट इज अबाउट pollutants released from vehicular emissions. अब ये ध्यान दीजिएगा, pollutants बहुत तरह के होते हैं, राइट? There are multiple different types of pollutants. All जो यहाँ पे चारों लिखे हुए हैं, all of these are pollutants. But vehicular emissions से निकलने वाले pollutants पूछा गया, राइट? अब इसमें 4 दिए हुए हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन के कारण निकलता है, ऑफ कोर्स vehicular emission से निकलने वाले हैं, है ना? तो विच ऑफ द अबव पूछा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ये 1 तो होगा, राइट? दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ये कैसे निकलता है? तो ये आपको होता है डस्ट, है ना, ये आपको डस्ट से निकलता है. ये आपको निकलेगा किस चीज से? टायर के फ्रिक्शन जो हो रहा है रोड के साथ, उससे निकलने वाले जो टायर के पार्टिकल्स हैं, है ना,
टायर के वियर एंड टियर से, राइट, उसके एग्जॉस्ट से निकलने वाले जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, ये सब मिलकर के बनाता है SPM। तो ये दोनों तो हो गया, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। आई एम होपिंग कि द पीपल हु हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड इट वेल, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए दोनों आसान होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट आएगा, इफ यू आर एक्चुअली कीपिंग अप विथ योर करंट अफेयर्स, तो दिस इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अभी बार बार आपको न्यूज में देखने के लिए मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, राइट। इसके केस में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के केस में, कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे जो है थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पे इस चीज को फिल्ट्रेशन के लिए जो है अभी भी मशीन्स नहीं लगे हुए हैं, फिल्टर्स नहीं लगे हुए, राइट। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में आपको सल्फर डाइऑक्साइड रिलेटेड एमिशंस देखने के लिए मिलते हैं। इट इज अ पोल्यूटेंट बट नॉट अ व्हीकुलर पोल्यूटेंट। 3 नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देख लेते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, है ना, डायरेक्टली निकल रहा है। दीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, है ना, NOx हो गया, वो जब आपको सनलाइट के साथ वो करता है ना, जब सनलाइट के साथ इसका जब मिश्रण होता है, जब सनलाइट के साथ यहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इसके कारण इन द एटमॉस्फेयर ये O3 बनता है, दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। इट इज नॉट बीइंग एमिटेड डायरेक्टली, सो इट इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। बट यहां पे आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं पूछा है ना, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज आर प्राइमरीली रिलीज्ड बाय या रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकुलर एमिशंस, ठीक है। तो व्हीकुलर एमिशंस यहां पे हो रहा है, ठीक है, उसमें जो निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या दूसरा NOx वगैरह, है ना, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स व्हेन दे आर रिएक्टिंग विथ सनलाइट, दे आर कॉजिंग ग्राउंड लेवल ओजोन, एंड इससे निकलेगा आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है दे आर बीइंग कॉज्ड बाय व्हीकुलर एमिशंस, ठीक है, प्राइमरीली बीइंग कॉज्ड बाय व्हीकुलर एमिशंस। अब यहां पे देखिए, इसी तरीके से ना थोड़ा सा आपको जो जिसको कहिएगा ना कि क्वेश्चन को टफ कर दिया गया, राइट, कि यहां पे जो चारों ऑप्शंस हैं दे आर ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये चारों ही इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, चारों ही बहुत मेजर रीजंस हैं हमारे यहाँ पे पोल्यूशन के, ठीक है। बस इसमें 2 ऊपर वाले डायरेक्टली निकल रहे हैं, है ना, उसके कारण वो जब सनलाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है तब आपको सबसे लास्ट वाला ग्राउंड बेस्ड ओजोन हो रहा है। जो बीच का है सल्फर डाइऑक्साइड, वो उसमें उन्होंने करंट अफेयर्स से डाल दिया ताकि आपको बस जो ये दिल्ली और उसके आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे रिलेटेड वहां पे एक पोल्यूटेंट आपको डाल करके आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बस चेक कर रहा है, राइट। तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 4 होना चाहिए, राइट। ये दोनों जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करके फिर ये आपको ग्राउंड लेवल ओजोन आ रहा है, ये भी डायरेक्टली आपको जो है व्हीकुलर एमिशंस के कारण ही हो रहा है ना। तो ये एस्पेक्ट आ गया। अब इसमें देखिए क्या आपको किया जा रहा है कि भाई एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, और उसके साथ साथ ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम लोग जैसे अभी अलग अलग जो सोर्सेज पढ़ते हैं ना, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन के केस में, बट इट इज एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस इंडिया, तो उसमें कौन कौन से ऐसे और पोल्यूटेंट्स हैं जो व्हीकल के अलावा है, राइट। तो ये सारा एस्पेक्ट है। इसमें आपने देख लिया कि कहां पे गलती हो रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के केस में जनरली आपको गलती होगा और नहीं तो ग्राउंड लेवल ओजोन के केस में, राइट। इसका अच्छा, जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई PDF वगैरह जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ में ना आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो ये आप डायरेक्टली दृष्टि IAS इंग्लिश के यूट्यूब चैनल के पेज से आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। इसके लिए भी आपको लिंक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो लोग अभी थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे होंगे उनके लिए है कि दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द टॉप 20 क्वेश्चंस मोस्ट कैंडिडेट्स गॉट रॉन्ग, है ना। और इसमें जो लोग पहला टेस्ट नहीं दे पाए हैं, राइट, फर्स्ट ओपन मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं, उनके लिए जो सेकंड मॉक टेस्ट आने वाला है वो 18 जनवरी को आने वाला है, राइट। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है।
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री से आएगा। 64% लोगों ने इसमें गलती की है। क्वेश्चन नंबर है 19। यहां पे सर सैयद अहमद खान एसोसिएटेड विथ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका 150th एनिवर्सरी है, राइट? 150th एनिवर्सरी क्यों? क्योंकि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, तो इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 150th ईयर, है ना? इस कारण से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। सर सैयद अहमद खान के पर्सनालिटीज वाले क्वेश्चन में भी पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसमें केस में होता क्या है कि जनरली जो भी हमारे यहाँ पे इस तरह के जो पर्सनालिटीज जुड़े हुए हैं, मोस्टली वी सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट, राइट? और उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए, ही वांटेड टू हार्मोनाइज वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, है ना? वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, राइट? मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे, तो सोशल रिफॉर्मर्स के केस में जनरली हम लोग पॉजिटिव ही देखते हैं, है ना? वहां पे ऑफ कोर्स ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को वैल्यू देते थे, तभी तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाएंगे, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, है ना? एंड बिलीव दैट रिलीजन शुड अडैप्ट विद टाइम, ये इनका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहा था, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। बट अब जनरली जो भी हम लोग सोशल रिफॉर्म देखते हैं तो जनरली इन्हें पॉजिटिव लाइट देखते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उसका डायरेक्ट कोरिलेशन हो पॉलिटिकल यूनिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक और कंटेक्स्ट याद रखना होगा हिस्ट्री से जो आएगा कि 1857 के वॉर के कारण, द वॉर ऑफ 1857 was a very traumatic experience for the Muslim masses, right? It not just led to the loss of power, but loss of prestige. And they were trying to get back, है ना, to the older prestige, है ना, older social status, right? For that, people like Sir Syed Ahmad Khan wanted the Muslim masses to uplift themselves socially, to uplift themselves किस तरीके से? Educationally, इकोनॉमिकली, और उसके बाद ये पॉलिटिकल स्फीयर में आए, राइट? उसमें भी ही बिलीव दैट द इंटरेस्ट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ बिट डाइवर्जेंट, राइट? इसलिए भी ये कहेंगे, तो ये जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ही सपोर्टेड अर्ली, पहली बात तो यहाँ पे अर्ली, ये तो अर्ली के लिए उसमें ही नहीं थे, है ना? ये तो कह रहे थे कि भाई पहले आप एजुकेटेड हो जाएं, आप इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो जाएं, देन यू कैन थिंक अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलोंगसाइड हिंदूज, राइट, टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, ऐसा नहीं था, है ना? इनके केस में बस ध्यान रखिएगा कि जो भी मान लीजिए दे माइट बी प्रोग्रेसिव इन वन स्फीयर, दैट डजंट मीन दे आर प्रोग्रेसिव इन ऑल अदर स्फीयर्स, है ना? दैट डजंट मीन दे आर ऑल्सो एडवोकेटिंग क्या, किस तरह का? नेशनल यूनिटी, ठीक है? तो यहाँ पे जो पावर, पॉलिटिकल पावर का जो लॉस हुआ था आफ्टर 1857, है ना, इनका जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस दैट द मुस्लिम मासेस वेयर फेसिंग, है ना, इन दैट टाइम पीरियड, राइट? और उसमें भी द फियर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल क्या रिप्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था दैट ही डिड नॉट वांट मुस्लिम्स टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना, बिफोर दे हैव इक्विप्ड देमसेल्व्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये जरूर था कि ही वांटेड दैट रिलीजन शुड अडैप्ट विद टाइम, है ना? ये रैशनलिज्म के फेवर में थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे, बट ही डिस्करेज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्पेशली इन द अर्लियर स्टेजेस, ठीक है? और इसमें जो है आपको मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन पॉलिटिक्स वगैरह इससे निकल के आता है, ठीक है? इसमें अब ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं, राइट? नेक्स्ट अगेन ये सारा जो है आपको दृष्टि IAS इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे है, वहां पे ये सारा चीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, राइट? अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 फ्रॉम इकोनॉमिक्स। 62% लोगों ने इसमें गलती की है। अभी अब देखिएगा कि अभी से लेकर के मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी बीइंग it will be attempted wrong by most people, like above 50%. ज्यादातर जो हम लोग अभी क्वेश्चन देखने वाले, लास्ट के कुछ छोड़ दीजिए, राइट? सो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग अटेम्प्टेड रॉन्ग, और उसमें कुछ बहुत ही बेसिक चीजों पे गड़बड़ हो रही है, राइट? तो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट? इसमें पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन कौन से जो है ये इंक्लूडेड है PSL नॉर्म्स के अंदर बाय द RBI, राइट?
इसमें आई एम होपिंग कि एग्रीकल्चर सबको ही पता होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सबको ही पता होगा। इसके अलावा जनरली पीपल आर ऑल्सो एबल टू एसोसिएट इट विथ एमएसएमई। बहुत बार करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ करके दे आर एबल टू रिकॉल इट। इसके अलावा आई एम होपिंग कि हाउसिंग को लेकर के ज्यादातर लोग गेस कर पाएंगे, बिकॉज दे वुड नो अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो हाउसिंग को लेकर के जो लोन्स दिए जाते हैं वहां पे भी पीएसएल नॉर्म्स अवेलेबल है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ जो आरबीआई चाहेगी कि लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हों, ज्यादा इन्वेस्ट करें, राइट। इट इज इंक्लूडेड इन पीएसएल नॉर्म्स। अगेन एक्सपोर्ट क्रेडिट, वी वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्टर्स को हम क्रेडिट दें ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाए, सो दैट वी गेट मच मोर इंटीग्रेटेड इन द ग्लोबल वैल्यू चेन, राइट, जिसका फायदा चाइना को मिल रहा है ना, दैट इवन ट्रंप एंड हिज टैरिफ पॉलिसीज आर नॉट एबल टू कोअर्स चाइना, राइट। तो ये सारे केसेस में अगर आप देखिए तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सब कुछ आ जाएगा। एजुकेशन के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इट इज अप टू 25 lakhs। इट इज अप टू 25 lakhs। 25 lakhs के एजुकेशन लोन, up to 25 lakhs of education loan is covered under PSL norms. Above it is not, right? कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर, राइट। इसमें बेसिक एस्पेक्ट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसमें भी स्पेसिफिकली एजुकेशन को लेकर के देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी आस्क्ड, है ना, उसमें अप टू 25 lakhs ही कवर्ड है, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो ये जिस चीज पे भी ना आरबीआई को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होता है, राइट, ऑन अ वाइडर स्केल, जिससे पूरे के पूरे सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, दे आर पुटिंग इट अंडर पीएसएल नॉर्म सो दैट उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, ठीक है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू पीएसएल नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट आ रहा है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 61% क्वेश्चन कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर इज 67। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, राइट। रिपोर्ट्स बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना। इसमें वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? एनी आइडिया? वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस विच रिपोर्ट? एनी आइडिया? याद करिए, एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा है? तो आउटलुक इज बाय IMF and prospects जिसमें आपका आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक। ये दोनों हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जनरली हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। ये आ रहा है यूनाइटेड नेशंस। अब इफ यू नो दिस क्वेश्चन, है ना, तभी अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज यहां पे गलती होने के चांसेस बहुत हाई है। कितना हाई? मोर देन 60% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव गॉटन इट रॉन्ग, राइट। क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स आपको जो है ना जनरली वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ आप जोड़ के देखते हैं, है ना। कुछ लोगों को लगा कि अच्छा भाई बैंक का हो सकता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का होगा, राइट। If you know this question, then only attempt such questions. Otherwise, छोड़ दीजिए, right? But it will be very difficult to leave it, right? Because ये आपको सुना सुनाया लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको प्रॉपरली इसको कहते हैं ना कि आपकी गलत करवाने के लिए ही डाला जाता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। इसमें एक बायस है कि जैसे है ना हम लोग देखते हैं कि जब भी इकोनॉमी की बात होगी, है ना, तो IMF वर्ल्ड बैंक की बात होगी, राइट। डेवलपमेंट की बात होगी तो जनरली हम लोग वर्ल्ड बैंक को ही देखते हैं, राइट। बट यहाँ पे कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सिमिलर नाम के रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। हाँ, अदर एस्पेक्ट इज ऑफ कोर्स कि इफ यू हैड रेड अबाउट इट, जब ये आता है, इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड इट, तब तो ऑफ कोर्स इट विल बी इजियर फॉर यू, है ना। इसी में आपको जो है ना रेगुलर इस तरह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाई चांस यू वुड हैव मिस्ड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, बट अगर आपने मॉक टेस्ट ही दे लिया, राइट, उसमें से आपने पढ़ लिया, इसको आपने सही तरीके से एक बार देख लिया, है ना, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन अभी जब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, राइट,
तो फिर आपके चांसेस हैं कि एक बार आप जिसमें गलती कर लेते हैं, द क्वेश्चन दैट यू हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड रॉन्ग एंड read about it is much more likely that you are able to recall even in pressure situations just because you have attempted it once, right? So do try and give the next exam that is on 18th. ठीक है, next is, अब हम लोग आते हैं with respect to, अब पॉलिटी के, I was really surprised that we are just like 132 days away from the exam and still quite a lot of students are having problems with respect to really basic aspects of polity के questions, right? जैसे we are going to continuously see polity questions जो above 50% candidates have gotten it wrong. Let's see. तो question is from polity, 60% have gotten it wrong. पहला ही question है, right? It is with respect to safeguards under Article 22. यहाँ पे दो चीजें आती हैं, punitive and preventive. कौन कौन सा? तो punitive detention, preventive detention. Let's see. इसमें यहां पे the person detained preventively, यहां पे पूछ रहा है preventively must be produced before a magistrate within 24 hours of detention. ये जो magistrate के सामने वाला है, this is with respect to punitive, है ना? जब आप you have committed a crime, the police has detained you, then you have these safeguards. Next, इसमें अगेन ये प्रिवेंटिव के बारे में पूछ रहे हैं, तो राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, अगेन प्यूनिटिव. इन फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट जैसे ही आर्टिकल 22 के अंदर, as soon as the constitution itself has included preventive detention in its fundamental rights clauses, right? That means that it is putting security of the state above individual liberty in a way, है ना? इसमें the crime has not been committed, still the state is having the powers to detain you, right? तो वहां पे इस तरह के safeguards नहीं मिल रहे, है ना? वहां पे कुछ safeguards हैं, right? बट ये जो दोनों safeguards आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, these are not available in case of preventive detention, these are available in case of punitive detention, right? This is, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है, right? It is among the most wrong answers given by the candidates, right? Article 22, उसमें आप safeguards जो पढ़ रहे हैं, these are with respect to punitive and preventive. यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे specifically preventive लिखा हुआ है, and दोनों ही के केस में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों किससे रिलेटेड है? Punitive detention से. This is the benefit of giving जो repeated mock tests, है ना? तो जरूर कोशिश करिए इस चीज को लेकर के, ठीक है? आई एम होपिंग, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, neither one nor two, ठीक है? नेक्स्ट इज पॉलिटी के ही अगेन 58% क्वेश्चंस कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर इज 8. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लीडर्स इन पार्लियामेंट. अब ये एक सेंस में इट्स अ इजियर क्वेश्चन, है ना? एक सेंस में इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन. इफ यू रिमेंबर दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह was the previous prime minister, former prime minister, was a member of the Rajya Sabha, right? And उस समय Pranab Mukherjee and other people used to be the leader of the house in the Lok Sabha, right? अगर if you are able to remember even this political fact from like just a decade back, आप इसको आसानी से कर सकते हैं. बट इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. तो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ इन द लोकसभा इज ऑलवेज, जैसे ही एक्सट्रीम वर्ड है कान खड़े हो गए एकदम, जो है ना, ध्यान से इसको पढ़ना है. ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही और शी इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा और नॉट. नहीं हो सकता है ना? द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम द लोकसभा टू बिकम लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा, राइट? उसके बाद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, राइट? एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है. ये आपको पार्लियामेंट्री रूल्स और पार्लियामेंट्री लॉज से निकल के आते हैं, है ना? इसके लिए एक लॉ बना हुआ है, उनसे निकल के आता है, ठीक है? तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. ये सही है. हाफ लाइक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इज रॉन्ग, स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इज करेक्ट. सो यहाँ पे अभी सबसे पहले ना, इनफैक्ट क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले करेक्ट इनकरेक्ट को पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, ताकि आपका कुछ सेकंड्स एटलीस्ट बच जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने पूछा कि भाई ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर, नो, है ना? यहाँ पे दूसरा पार्ट सही है बट ओवरऑल गलत हो गया, है ना? क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
नहीं है, दैट मीन्स यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। दैट मीन्स यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक्ट है वो है 1977 का एक्ट है, राइट। लीडर ऑफ द हाउस का ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा से निकल के आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको इतनी क्लैरिटी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, राइट। बट इफ नॉट तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, स्पेशली जहां पे आपको इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, ये था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू लीडर्स ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसमें देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बना रहा है, ठीक है। जो भी आप जब व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस तो हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, राइट। बट जो चीज वहां पे मेंशन नहीं है उसमें जरूर यूपीएससी उसको जो है ना डालने की कोशिश करेगा। अब एक और कैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा डिलिमिटेशन के केस में, अगेन वहां पे भी देखिएगा, वहां तो आर्टिकल नंबर तक आपको देखने के लिए मिल सकता है ना। वहां पे भी ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों में थोड़ा सा एक बार जरूर अपने दिमाग में लाइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में चलिए आप कुछ एक दो मिस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो नो सीरियस कैंडिडेट वुड मिस इट, राइट। सो इन दैट केस इसको एकदम आपको अपनी तैयारी पे जो है ना भरोसा करना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज लीडर्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज अगेन क्वेश्चन नंबर इज 7, है ना। क्वेश्चन नंबर इज 7, 57% लोगों ने गलती किया है, पॉलिटी से ही क्वेश्चन है, इट इज। अब यहाँ पे 3 तरह के आपको पार्डन्स 5 तरह के पार्डन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ बेसिक है। पार्डन इज क्या कि भाई क्लीन स्लेट, आपका जो कन्विक्शन है, सेंटेंस है, सब रिमूव कर दिया गया। ये सबसे इजी होता है, ठीक है। ये याद रखना सबसे इजी होता है। दिक्कत आती है इसके बाद वाले में। तो कम्यूटेशन में आपको जो है क्या किया गया, उसी का एक लाइटर फॉर्म दे दिया गया कि इट सब्स्टिट्यूट्स वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। इतना ही वहां पे किया जा रहा है ना, इससे ज्यादा वहां पे और कुछ नहीं हो रहा है। बट कम्यूटेशन के केस में इट इज चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, है ना। तो इट चेंजेस द नेचर। यहां पे आपको क्लीन स्लेट, सब कुछ आपको हटा दिया गया, यहां पे इट चेंजेस द नेचर। रेमिशन के केस में, अब ये कम्यूटेशन और रेमिशन के बीच का डिफरेंस होगा कि इट रिड्यूसेस द पीरियड विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल बिट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेशन एंड रेमिशन। एक तरफ वहां पे आपको इट इज चेंजिंग द नेचर ऑफ द जो आपको कहिएगा जो कन्विक्शन, है ना, एंड दूसरी तरफ रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, ठीक है। तो इट शॉर्टन्स द ड्यूरेशन, बट यहां पे कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसके केस में सब कुछ ही हट जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सही है ऑफ कोर्स, है ना, ये तीनों हमें, पार्डन सही है, कम्यूटेशन सही है, रेमिशन सही है। पूछा क्या जा रहा है, करेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट में ये बोल रहा है टेम्परेरी स्टे, नहीं, रेस्पाइट में आपको होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, है ना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कई प्रेगनेंसी, राइट, फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके कारण आपको कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेस्पाइट दिया गया है ना, राहत दी गई है, ठीक है। और दूसरा रेप्राइव, दैट इज टेम्परेरी स्टे इन एग्जीक्यूशन। इन्होंने सिंपली बस ऐसे कर दिया है, आपको करेक्ट पूछा है ओनली 3। अब ये ध्यान दीजिएगा, 3 सही है, ठीक है, बी ऑप्शन है। कई एक बच्चों का लाइक वी आर सीइंग दैट कहां पे गलती हो रही है, सिली मिस्टेक्स कहां हो रहा है, एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट, बस उनके दिमाग में क्या हुआ, 3 सही है, सी में उन्होंने मार्क कर दिया। इस तरह के सिली मिस्टेक्स आपको सबसे ज्यादा दुख देंगे। नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, राइट। आता हुआ में अगर इस तरह के सिली मिस्टेक्स हो गए ना, बहुत दुख होता है। तो ऐसे ना हो, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस तरीके से भी ट्रैप्स सेट रहते हैं, राइट। 3 चीजें सही हैं, है ना, बट द ऑप्शन इज बी, राइट। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू द पार्डनिंग पावर्स, है ना। नेक्स्ट अब आता है एनवायरमेंट का। अगेन मोर देन half of the candidates have attempted it wrong. 75 नंबर क्वेश्चन है with respect to रामसर कन्वेंशन। ईरान अभी काफी न्यूज में है, राइट, ईरान इज क्वाइट अ बिट इन न्यूज अभी, है ना। उस चीज को लेकर के रामसर 1971 में ईरान में ही इसका जो है आपको
देखने के लिए मिलता है ना। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इट वाज साइंड इन 1971, एकदम सही। ओनली ग्लोबल ट्रीटी, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट, कि इज इट द ओनली ग्लोबल ट्रीटी, बट अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओनली ग्लोबल ट्रीटी दैट फोकसेस एक्सक्लूसिवली, ठीक है, ऑन द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। अब रामसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाले एस्पेक्ट्स में, है ना। आई एम होपिंग दैट यू नो दैट दिस इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी एंड एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ये दोनों ही यहाँ पे आपको सही देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि द कन्वेंशन ऑपरेट्स अंडर, अंडर, इज इट अंडर और इज इट विथ? ये देखिए यहां पे किस तरीके से आपको यहां पे क्या किया गया, ट्रैप किया गया। यहां तक आपको सब कुछ सही लगा, ठीक है। इज इट अंडर? अंडर यहां पे गलत हो जाएगा। इट वर्क्स विथ यूएन एजेंसी सच एज यूएनईपी, ठीक है। अब इसी में आपको जो है और भी आते हैं, यूनेस्को वगैरह भी आएगा। यहां पे देखिए किस तरीके से छोटे से वर्ड का कारण आपको यहां पे गलती हो जाता है, ठीक है। तो द कन्वेंशन ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ इट्स मल्टीलैटरल बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट सिस्टम। ये गलत हो गया, राइट। क्यों? इट वर्क्स विथ द यूएनईपी, नॉट अंडर द यूएनईपी, राइट। इसके केस में अब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, सी इज द आंसर, राइट। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में यहीं पे आपको जो है ना, दे आर ट्राइंग टू ट्रैप यू, राइट। नेक्स्ट इज रामसर के बाद अब हम लोग आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 22, हिस्ट्री से है। 57 कैंडिडेट्स हैव अगेन अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। अब ये बहुत ही जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, इफ यू नो अबाउट योर हिस्ट्री, योर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स वेल, राइट। लैंग्वेज का डिबेट ऐसे भी अभी भी बहुत ज्यादा अभी इसमें चल रहा है ना, काफी ज्यादा आपको इसमें न्यूज में रहता है उस चीज से रिलेटेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स ऑफ गांधी जी, जिसमें ये कहते हैं कि आई मस्ट क्लिंग टू माई मदर टंग, आई मस्ट क्लिंग टू माई मदर टंग एज टू माई मदर्स ब्रेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट शॉर्टकमिंग्स। ठीक है कि भाई हो सकता है कि उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हो हमारी लैंग्वेज में, हमारी अपनी मातृभाषा में, बट आई विल क्लिंग ऑन टू इट। इट अलोन कैन गिव मी द लाइफ गिविंग मिल्क, राइट। कि हमारी माँ में किसी तरह के शॉर्टकमिंग्स हो भी सकते हैं, बट उनकी ही जो है दूध से हमारा भरण पोषण हो सकता है बेसिकली, है ना। अगर इफ यू वुड रिमेंबर 1930s में गांधी वॉज एसोसिएटेड विथ नई तालीम, वहां पे भी मदर टंग पे काफी ज्यादा फोकस है, राइट। इफ यू वुड रिमेंबर दैट गांधी जी इज एसोसिएटेड विथ लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस कमिटीज, राइट, जो बाद में रीजन बनता है हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, राइट। इनके साथ स्वराज के एस्पेक्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है मातृभाषा पे, राइट। इनका जो डिकॉलोनाइजेशन का जो पूरा इनका प्रोसेस जो ये बात करते थे, उसमें जो है लैंग्वेज का इन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया है, राइट। इन सारे कनेक्शंस के थ्रू ऑफ कोर्स द आंसर इज गांधी जी, राइट। अब इसमें गलती कहाँ होती है, तो जनरली हम लोग कल्चरल एलिमेंट्स को टैगोर और नहीं तो स्वामी विवेकानंद के साथ में देखते हैं जोड़ करके, राइट। गुरुदेव टैगोर के साथ या फिर स्वामी विवेकानंद के साथ, है ना। ये दोनों के केस में ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज को लेकर के देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्फेसिस दैट वाज पेड बाय गांधी आल्सो, राइट। स्पेशली अगर इस तरह का कोई कोट आ जाए तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर नहीं आपने ये कोट सुना है, डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, राइट, इट्स नॉट वर्थ इट। ये आपको गलती करवाएगा, है ना, माइनस में नंबर क्यों ही लेना, ठीक है। इतना भी जो है जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेंस के कंटेक्स्ट में देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इफ यू आई एम पैराफ्रेजिंग हिज कोट कि माई फीट आर फर्मली ग्राउंडेड बट माई विंडोज आर ओपन, है ना। ये भी गांधी जी का ही कोटेशन है, राइट। तो माई फीट आर फर्मली ग्राउंडेड बट माई विंडोज आर ओपन। कि हम सब तरीके से सब जगहों की हवाएं, सब जगहों की इन्फ्लुएंसेस हम लेंगे, बट हम अपने जो है कल्चरल रूट्स को नहीं छोड़ देंगे, राइट। तो ये हम लोग ऐसे के केस में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। उसके केस से भी आपको इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट इज अब आता है पॉलिटी का है, क्वेश्चन नंबर है 10।
57% अगेन हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग, है ना। इसमें हम देख रहे हैं रिगार्डिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक, रिटायर्ड जजेस, एक्टिंग सीजीआई, आपको एक ही जगह हम लोग जनरली पढ़ते हैं, है ना। इसके केस में जैसे ही हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आप इसको एलिमिनेट कर पाइएगा, बट जहां पे आपको याद रखना है वो बहुत ध्यान से याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहां पे देखिए कि पहला चीज क्या आ रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, राइट। द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली अपॉइंट एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेनेवर देयर इज अ वैकेंसी अपॉन, कोई चांस नहीं, है ना। सीधे सीधे गलत हो गया। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, सम सिचुएशनल डिस्क्रिशंस आर देयर बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, राइट। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द, अब ये चीज सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बट दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस, द रिविजन एस्पेक्ट कम्स अबाउट। अगेन हमने कहा ना कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट अंडर प्रेशर सिचुएशंस, राइट, है ना, तब तक आपको वो काम नहीं देगा, राइट। इसी के लिए, है ना, इस तरह के जो मॉक टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं बाय डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स में, राइट, दे बिकम रियली हेल्पफुल, बिकॉज आप लाखों लोगों के साथ, लाख नहीं भी तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ दे रहे हैं, राइट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन इट। आपको जो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मिलता है, राइट, इट रियली गाइड्स यू कि अगले 130 दिन, अगले जो 4 महीने हैं, आपको किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, ठीक है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, किस तरह की हो रही है, राइट, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, बट दिस रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड द जज कंसर्न, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है कि भाई ऐसा है। जो यहाँ पे जो रिटायर्ड जजेस हैं वो ऑलरेडी वो सारे स्क्रूटनी को पार करके जा चुके हैं, है ना। इसके केस में सीजीआई, है ना, दोनों से पूछेंगे, दोनों का कंसेंट लेंगे, प्रेसिडेंट का भी और रिटायर्ड जज का भी, और अगर दोनों अग्री कर जाते हैं तो फिर इनको अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ टेम्पोररी पीरियड। ये जरूर ध्यान दीजिएगा बिकॉज उनका 65 का एज ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, राइट। नेक्स्ट इज एक्टिंग चीफ जस्टिस, है ना, कैन बी अपॉइंटेड ओनली by the chief justice himself when he is unable to perform his duties। अरे भाई, अगर वो खुद ही अपने काम को अभी जो है नेबल है करने में, तो वो ओनली उनके ऊपर तो ये नहीं छोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, राइट, है ना, तो वो कहां से वो अपॉइंट करेंगे फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, राइट। किसी भी एक्सीडेंट हो गया, राइट, तो इट विल नॉट मेक सेंस, है ना। तो अगेन दिस इज रॉन्ग। यहां पे पूछा जा रहा है करेक्ट, ठीक है, विच वन इज करेक्ट। यहां पे ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, बट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ओनली वन इज करेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट का दैट डजंट मीन बी ऑप्शन हो, राइट, ऐसी गलती ना हो। हम लोग एक बार बातचीत कर चुके हैं कि ऐसा हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कई एक बार इस तरह की गलतियां, बहुत ही सिली मिस्टेक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा ना हो तो आपको बहुत खुशी होगी आगे जाकर के, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ये था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनवायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 77। मोर देन 50% हैव अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स, राइट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एवरग्रीन कैन टॉलरेट मॉडरेट सैलिनिटी, है ना, दे कैन टॉलरेट मॉडरेट सैलिनिटी। आपको सी वाले एरियाज में भी मिलते हैं, बट वहां पे फ्रेश वाटर भी आ रहा है और सी वाटर भी मिल रहा है ना, तो इसलिए दोनों यहां पे मिल रहे हैं, इसलिए मॉडरेट सैलिनिटी मिलेगा, राइट। बट रिक्वायर कंटिन्यूअस टाइडल इन्फ्लुएंस, राइट। यहां पे कंटिन्यूअसली यहां पे टाइड्स ऊपर और नीचे होते रहे, तभी इनकी सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। ये तीनों ही एस्पेक्ट्स आपको मैंग्रोव्स के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो आपको सही मिलता है। अब मैंग्रोव्स हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में सब लोग ही पढ़ते हैं, राइट। इससे जो रिलेटेड अब देखिए जो आपको क्वेश्चंस बनेगा, वहां पे आपको देखना होगा कि भाई किस तरीके से आपको यू आर गोइंग इन डेप्थ इन अबाउट दिस। ये न्यूज में भी है ना, अभी हम लोग लास्ट 6 महीने में ही हम लोग देखें इसके बारे में, राइट। इसके बाद इन मैंग्रोव्स विविपेरी इज एन एडेप्टिव मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आता है, राइट, दैट हेल्प्स सीडलिंग्स एस्टैब्लिश्ड इन सॉफ्ट सेलाइन एंड
क्या, सॉफ्ट सलाइन एंड अनस्टेबल मड फ्लैट्स। बेसिकली विविपेरी में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो आपको सीड्स मिलेंगे, these seeds are able to these seeds are able to do what? They are able to germinate while they are attached with the parent plant itself, है ना। पेरेंट प्लांट से अलग होकर के, जैसे आम का पेड़ है, वहां से जो फल निकला, उसके अंदर से सीड निकला, उसको हमने सॉइल में डाला, फिर वो होगा, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, बिकॉज ये जिस तरह की सिचुएशन है कि वे सॉफ्ट है, सलाइन है और अनस्टेबल मड फ्लैट्स में ये जनरली पाए जाते हैं, तो वहां पे विविपेरी के केस में क्या हो रहा है कि वहां उस सिचुएशन के, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को, और वहां पे दीज सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट वाइल दे आर अटैच्ड टू द प्लांट, पेरेंट प्लांट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड विविपेरी। अगर आपको पढ़ा हुआ है देन ओनली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस इज नॉट समथिंग दैट जहां पे आप गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली में करेक्ट, ठीक है। ऑल मैंग्रोव स्पीशीज develop prop roots that rise vertically above the ground to facilitate gaseous exchange in waterlogged conditions. ऐसा नहीं है, राइट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको स्पीशीज देखना होता है कि भाई जो बहुत सारे मैंग्रोव के केस में इनफैक्ट ज्यादातर जो फोटोज भी आप देखते हैं ना, वहां पे ऐसे निकले हुए रूट्स, प्रॉप रूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वेराइटी, जैसे कि इसमें अगर आप देखिएगा तो आई विल PNEU, क्योंकि अब आप यहां पे देख रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो नो कि अच्छा ये नहीं है तो क्या, कौन सा सही है। तो PNEU MATO न्यूमैटोफोर्स, है ना। न्यूमैटोफोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर वेराइटी है मैंग्रोव्स के दैट डू नॉट हैव प्रॉप रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको ये, अब यहाँ पे ऑल है, थोड़ा सा आपको यहीं पे कंसर्न हो जाना चाहिए, पूछा जा रहा है, करेक्ट, राइट। ऊपर के दो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाई सही हो चुका है, तो या तो आपको ये पता हो, है ना, तभी अटेम्प्ट किया जाए, नहीं तो बिल्कुल जो है अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हम लोग जब मॉक टेस्ट लेते हैं तो उसमें हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि देयर आर फर्स्ट रीडिंग टू द पेपर, सेकंड रीडिंग टू द पेपर, थर्ड रीडिंग टू द पेपर। ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से ही आप उसको डेवलप कर पाते हैं कि भाई आप जो है फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ उनको अटेम्प्ट करें जो आप 100% कंफर्म है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में जहां पे आप दो ऑप्शंस एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाते हैं, उसकी तरफ आते हैं, राइट। या तो आपने पढ़ा हुआ है ठीक तरीके से तो आप इसमें आइए सेकंड रीडिंग में, अदरवाइज ये बिल्कुल ही जो है स्पेकुलेटिव में, डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिला कि पहला दो सही है, दैट इज ए, फर्स्ट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस, इसके लिए चिंता नहीं करना है ना, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो तो है ही, और अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नीचे में जो लिंक दिया हुआ है दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल वाले टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, है ना। दृष्टि IAS इंग्लिश टेलीग्राम लिंक पे आपको ये सारा PDF एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अब हम लोग हिस्ट्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, 57% लोगों ने इसको गलत किया है। लेट्स सी कौन सा ये क्वेश्चन है। तो दिस इज, अच्छा, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, UPSC भी ये पूछ चुका है, PYQ भी है आपका, राइट। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, राइट। प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स बिहार और बंगाल में 1830s में। जैसे ही आप बिहार बंगाल 1830s वर्नाकुलर स्कूल्स पढ़िए, एकमात्र नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, विलियम एडम रिपोर्ट, राइट। ये पूरे के पूरे बिहार और बंगाल में घूम करके ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारी पाठशालाएं हैं, है ना। इनके हिसाब से दे वेर इन लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स, ठीक है, कम्युनिटी पाठशाला, राइट, जहाँ पे जो है कम्युनिटी के लोग मिलकर के इनको जो है चला रहे होते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था, राइट। और इसके केस में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, क्योंकि इसके अलावा जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना कि जो मिल है ना, यहाँ पे जेम्स मिल, विलियम बेंटिक और चार्ल्स वुड, दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ colonial education debates. It is only William Adams report that is associated with actually उस टाइम का जो हमारा अर्ली colonial period का जो vernacular schools था, जो पहले से चला आ रहा था, उसके बारे में, ठीक है। तो these were wide access, these were community run, these were having practical curriculum, ठीक है। ये हमारा था with respect to William Adam, है ना, बिहार और बंगाल 1830s का इनका रिपोर्ट है, राइट।
नेक्स्ट इज, अब या तो ये आपको पता है एंड आई एम होपिंग कि ये चूंकि PYQ रह चुका है तो आई एम होपिंग कि ज़्यादातर लोगों को ये अटेम्प्ट करने में कामयाब हो गए होंगे। उसके बाद भी हम देखते हैं कि 57% लोगों ने कहीं पे इसमें कोई गलती हुआ है, राइट। तो किसी ना किसी, या तो वुड्स डिस्पैच के साथ वो उसका जो है कन्फ्यूजन आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, एनवायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 70, 55% लोगों का गलत हो रहा है। लेट्स सी क्यों। तो इसमें है, क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे अच्छा रीफ्स का है। 3 तरह के रीफ्स आपको कौन कौन से मिले? फ्रिंजिंग, फ्रिंज पे एकदम ऑन द एज, राइट। फ्रिंजिंग रीफ्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द शोर, राइट। एकदम ऑन द एज है ना, तो डायरेक्टली अटैच होगा तभी तो एज पे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरल रीफ्स फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान में तो है ही सबसे कॉमन, राइट। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप ग्लोबली, ठीक है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप ग्लोबली, ठीक है। तो फ्रिंजिंग रीफ्स डायरेक्टली अटैच, यहां पे शोर, यहां पे आपको मिल जाएगा। इसका दूसरा वर्जन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के केस में देखते हैं तो से फॉर एग्जांपल ये आपका ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है, यहां पे बीच में आपको लगून है एंड दिस इज द बैरियर रीफ, है ना। जहां पे बीच में एक वाटर बॉडी आ जाए दैट इज अ बैरियर रीफ, ठीक है। तो बैरियर रीफ्स रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, सेपरेटेड बाय अ शोर, है ना, सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय अ लगून, है ना, एंड आर मेजरली फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन सही है ना, सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय अ लगून सही है। क्या मेजरली फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार है? इट इज नॉट द केस। यहां पे ऑलमोस्ट सही हो रहा था, 2 यहां पे सही हुआ, लास्ट में गलत हो गया। दिस मेक्स इट अ रियली टफ क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन रियली केयरफुली, राइट। अदरवाइज इसके चांसेस क्या, 55% लोगों के गलत हो गए, राइट। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं, तो बैरियर रीफ यहाँ पे ये गलत हो गया, दिस वॉज करेक्ट। नेक्स्ट, अटोल्स। अब ये देखिए, हमारा जो अंडमान साइड है वहां पे आपको किस तरह के रीफ्स मिल रहे हैं? तो मेजरली आपको किस तरह के? फ्रिंज रीफ्स, है ना, फ्रिंजिंग रीफ्स। और दूसरे साइड में लक्षद्वीप आर कोरल रीफ्स वाले एरिया है, वहां पे आपको अटोल्स मिलते हैं। अटोल्स क्या है? तो दीज आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ्स फॉर्म्ड बाय कोरल ग्रोथ। दीज आर कोरल आइलैंड्स, लक्षद्वीप आर कोरल आइलैंड, इससे भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको फ्लोर प्लेटफॉर्म्स मिल रहा है और ये लक्षद्वीप में मिल रहा है, पूछ रहा है करेक्ट। तो दैट मीन्स 1 and 3 आर करेक्ट। सी, इसमें अगर मान लेते हैं इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट कि भाई ये जो बैरियर रीफ है ये गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं, तो भी आप 2, 2 and 2 इन तीनों को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट सच कॉमन एस्पेक्ट्स तो वो भी आपको मदद करता है। इफ नॉट देन आपको ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीफ्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अगेन मोर देन 50 रॉन्ग आंसर्स हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में है। अब ये देखिए यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक करेक्ट 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 चल रहा था, नॉट करेक्ट पूछ दिया। यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि द पेंशंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन, दैट इज नॉट वोटेबल, है ना। इस पे वोट नहीं हो सकता, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन डिबेट आप नहीं देखिएगा। ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट है बट दे आर प्रोटेक्टेड, है ना, एट द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन में दिस इज नॉट द स्टेट, दिस इज consolidated fund of India. They are charged on the consolidated fund of India, right? यहीं पे ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है। आप आगे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये सही है। ऐसे आप बस पढ़ लीजिए कि भाई यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, इसको लेकर के पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं बातचीत हो सकती है अंटिल उनको रिमूव करने की बातचीत हो रही है ना। रिटायर्ड एंड परमानेंट जजेस कैन प्रैक्टिस इन अदर हाई कोर्ट्स ऑफ कोर्स, है ना। एंड द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। ये तो सबसे बड़ा उनका इंडिपेंडेंस के लिए जो प्रोटेक्शन है ये यही दिया गया है, राइट। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू आपको द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, ये तीनों करेक्ट हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है यहाँ पे, बस, ठीक है।
नेक्स्ट इज पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 14. पॉलिटी के क्वेश्चन अगर इतने सारे गलत हो रहे हैं दैट मीन्स अभी रिविजन की जरूरत है, राइट, एंड इट रिक्वायर्स क्वाइट अ बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट. ओके, इसमें हम लोग देखते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू अगेन पॉलिटी का है, एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. दो इसके लिए आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B. लेट्स सी क्या लिखा. अच्छा, यहां पे आर्टिकल लिखा ही हुआ है, ठीक है. तो आर्टिकल 323A empowers both parliament and state legislature to establish administrative tribunal. 323A से निकलता है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. जैसे ही सेंट्रल होगा बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट नहीं हो सकता है ना. दूसरा, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कवर्स सर्विस मैटर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट. ये दोनों ही नहीं है, ना तो डिफेंस फोर्सेज आते हैं ना तो पार्लियामेंट्री स्टाफ आएंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी लोग नहीं आते, है ना. तो ये जैसे ही आपको ये क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी और ये सब को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, है ना, आर्म फोर्सेज, ये सब नहीं आते, ठीक है. तो ये दोनों ही आपको गलत हो जाता है. यहाँ पे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछा है, दैट मीन्स इसमें करेक्ट है. तो नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट. क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आप अगर ओवरऑल भी पढ़े हुए हैं, छोटे से एक मिस्टेक के कारण पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, सीएटी में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि इट इज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है ना. तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको पढ़ा हुआ चीज बस गलती हो जाए, ठीक है. हाँ, ये जरूर है कि जो 323B के अंदर बनते हैं वहां पे पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों ही है, बट यहां पे सिर्फ पार्लियामेंट. 323B के अंदर बने हुए सारे ट्रिब्यूनल्स में पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों के पास है पावर्स. 323A में सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, बिकॉज यहां पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है. ऑलराइट, नेक्स्ट आपको हमारा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज आई थिंक पॉलिटी ही कंटिन्यू हो रहा है, यस, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 है ना. 53% लोगों का गलत हुआ है. पॉलिटी का ही क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं. दिस इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसमें अगर गलती हो रही है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है. कोई घबराने वाली बात नहीं है, यू हैव एनफ टाइम, बट गो बैक एंड रीड इट, रिवाइज इट टिल द पॉइंट यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट. मेजॉरिटीज में गलती नहीं हो सकती है ना. देन आपकी प्रिपरेशन में अभी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, थोड़ा आपको उसमें काम करने की जरूरत है, राइट. इसके केस में एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ठीक है. एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी एक स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने के लिए होगा क्या. अच्छा, आगे और देख लेते हैं. एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट. ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता कि एक किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाने के लिए जो है ना सारे स्टेट्स में जो है इसके ऊपर वोटिंग हो रही हो, कोई लॉजिक ही नहीं है ना. तो ये गलत हो गया. यहाँ पे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कैन बी अल्टर्ड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल 368, है ना. फेडरल प्रोविजंस को चेंज किया जा रहा है ना. इसके लिए आपको डायरेक्टली क्या है कि भाई यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. हाफ है, मोर देन हाफ नहीं है ना. दूसरा, स्टेट्स में आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, रैटिफिकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, राइट. तो ये दोनों चीज को यहां पे ध्यान में रखते हुए क्या होगा, ये आपको सही हो रहा है, ठीक है. सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी. नहीं तो इतनी बार तो फिर ये चेंज ही नहीं कर पाते, और उसके बाद भी चेंज हो जाते. सब लोग जो है अपने सैलरी बढ़ाने के लिए वो जरूर वोट करते हैं. हमें भी वो अपना वोट मिलेगा तो हम हर दूसरे महीने जो है ना अपने सैलरी बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है. तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी सिंस दे इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, राइट. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है ना. कोई ऐसी सिंपल जो है स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ा सकते हैं. ये आर्टिकल 368 के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट ओनली वन, दैट इज ए. अगेन नो सिली मिस्टेक्स, राइट. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी जो है कोई भी चीज में फंसने का एकदम ही जो है नहीं होना है ना, बिल्कुल ही नहीं, राइट। तो नेक्स्ट वाज, अब हम लोग आते हैं एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, 51%। अभी भी देखिए वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आई डोंट नो लाइक एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चंस एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर गेटिंग इट रॉन्ग। सो यू कैन अंडरस्टैंड जो है कहाँ पे आपको ध्यान देना है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क्स, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो सही है ना, टू प्रोटेक्ट एरियाज ऑफ इकोलॉजिकल एंड फॉनल इंपॉर्टेंस, करेक्ट। The boundaries of national park may be altered by the state government after the consultation with state, नहीं होगा, ये होगा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ, है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, NBWL, है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट कैन नॉट बी स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक बार स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ये नेशनल लेवल पे इसको जो है अल्टर करने के लिए इनको नेशनल बोर्ड की इसकी परमिशन, यहाँ पे जो है कंसल्टेशन और उसमें जो है रिकमेंडेशन की जरूरत होती, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे ही आपका सेकंड गलत हुआ तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, एक तरीके से यहीं पे आपको आ गया कि थर्ड सही होगा। बट लेट्स एक बार पढ़ लेते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व may be notified by the state government after consultation with the local communities, of course, especially for areas adjoining the national parks and sanctuaries। ये सही, ठीक है। ऐसे भी जैसे ही आपका सेकंड गलत होता है आपको 1 and 3 ही बचता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, क्वेश्चन नंबर 92 है। पहला बार हमारा लेस देन 50 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो लोग अगेन लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो बस 2 ही 3 चीजें एक बस हम लोग बता सकते हैं आपको कि दिस इज ओपन मॉक टेस्ट का एनालिसिस है 20 क्वेश्चन का, जो ज्यादातर लोगों ने गलतियां की, राइट। कहाँ पे गलती हो रहा है, किस तरह का गलती हो रहा है, कहाँ पे फंसाने की कोशिश हो रही है, सिली मिस्टेक्स कहाँ हो सकते हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। रिविजन भी है जो टेस्ट दे चुके हैं। द पीपल हु हैव नॉट और हु आर नॉट एबल टू गिव द टेस्ट, आई एम होपिंग दैट नाउ दैट जस्ट 132 days are left, you would have started your preparation. If you want to know कि where are your strength and weaknesses, where do you want to channelize your efforts, उसके लिए 18th of January दृष्टि IAS is conducting the second all India mock test that you can give offline in all the physical centers and online at the district learning app, जिसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको अवेलेबल है, लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो ये PDF हम लोग देख रहे हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ कोर्स जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपको दृष्टि IAS इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। ये सारा अभी हम लोग क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, ऑलराइट। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द डीलिमिटेशन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली दिस ईयर, बिकॉज 2026 में ही आपको जो है डीलिमिटेशन कमीशन की बातचीत है, राइट। इट इज अ वेरी वेरी पॉलिटिकल हॉट टॉपिक, है ना। इसके केस में अब यहाँ पे पहले लिखा जा रहा है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट इज वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि द ऑर्डर्स इशूड बाय डीलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट वेरी वेरी पावरफुल। देयर ऑर्डर्स आर हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ, राइट, एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड। दे आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, है ना। दे आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। जैसे ही आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू हो गए तो यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? एक तो साल 2026 के कारण से, है ना। दूसरा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये वहां पे पूछ देंगे। और तीसरा कि भाई ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू है, तो वेरी पावरफुल, है ना। तो ये तीनों ये जो है ना एकदम हेडी मिक्स है। इस साल के वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से ये हो सकता है, राइट। इसमें पूछा जा रहा है कौन से करेक्ट है। यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है ना। 48% लोगों ने गलत किया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू क्या। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहां पे 2 प्रोविंसेस बनाया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, है ना। इसमें मेजॉरिटेरियन एस्पेक्ट पे बना। ईस्ट बंगाल वाज मेजॉरिटेरियन मुस्लिम,
वेस्ट बंगाल वाज मेजॉरिटी हिंदू, है ना। किस चीज के लिए? तो टू फॉस्टर कम्युनल डिवीजन, ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल। क्यों? क्योंकि बंगाल वाज द हब ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, और इस चीज को कमजोर करने के लिए लाया गया था, एंड इसमें जो है नेशनलिस्ट यूनिटी को तोड़ने के लिए लाया गया था, राइट। इसमें ही आपको देखने के लिए मिलता है कि नेशनलिस्ट लीडर्स एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक बंगाल नेशनल कॉलेज प्राइमरीली। तो ये तो हम लोगों ने बनाया था बंगाल नेशनल कॉलेज, है ना, हमारे ही लीडर्स ने। किस चीज के लिए? तो क्या ये रिप्लेस करने के लिए था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन? नहीं, वी वांटेड टू रिप्लेस colonial education, not English education. We were still in favor of modern scientific education, है ना, but not colonial education. We wanted nationalist control over it, right? And इसमें they wanted to replace it with traditional Sanskrit based learning, नहीं, है ना, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। We were quite happy कि भाई हम जो है ना अपने कंट्रोल में फिर यही सारी जो है मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट के लिए, तो पहला ऑफ कोर्स करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाता है। करेक्ट इज ओनली 1, ठीक है। क्यों हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे? जैसे देखिए, उस समय हम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी वहां पे हो रहा है सब कुछ गलत है, राइट। वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉलोनियल कंट्रोल, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो है वो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के बेनिफिट्स को भी हम छोड़ दें, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का जो होगा ना कभी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे यूपीएससी बेसिकली आपके साथ जो है ना ऑलमोस्ट लाइक इमोशनली खेल रहा है कि एक तरफ आपको जो है ये सही भी हो गया, दूसरा आपको कहेगा कि हाँ भाई शायद ये भी आपको लगे कि हाँ भाई संस्कृत भी हो रहा होगा साथ में, है ना। तो ऐसा दोनों के केस में नहीं था। लास्ट हम लोग आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी अगेन, क्वेश्चन नंबर 4, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लोगों ने गलत किया है। एंड the question is with respect to the parliament's power to legislate on the matters of state list. The parliament's powers to legislate on matters of state list. इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि the parliament can make laws on state list matters if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority. 2/3 majority, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, देर इज अ टेम्पोररी एक्सपेंशन ऑफ पार्लियामेंट्स पावर, है ना। राज्यसभा दे रहा है टू द पार्लियामेंट, राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पे किसी जगह पे आपको गवर्नमेंट इसमें जो पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि वहां पे जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत है, तो वहां पे राज्यसभा बाई 2/3 मेजॉरिटी ये चीज कर सकता है, ठीक है। इसके केस में यहां पे क्या देखने के लिए मिला, एंड सच लॉज रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन लैप्सेस। ये देखिए ऐसा कुछ है क्या, इसका आर्टिकल देखिए, दिस इज आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दिस इज आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा कुछ है कि भाई ये जो एक बार यहाँ पे कोई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो वो तुरंत में ही जो है खत्म हो जाएगा, है ना, 6 महीने के अंदर ही, जैसे कि ऑर्डिनेंस के केस में होता है, क्या ये खत्म हो जाएगा? देखिए 2/3 मेजॉरिटी से इनको ये पावर दिया जा रहा है, ठीक है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, उसके बाद इनको ये पावर मिल रहा है। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स इफ राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, है ना, आर्टिकल 249 में इसके बारे में है। And such laws remain in force for 6 months after the resolution lapses. ये सही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ये आर्टिकल 249 के बेसिक एस्पेक्ट में ही है, यहाँ पे आपको सही देखने के लिए मिलेगा। ये किस तरीके से अलग होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ये आपको जब हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल के केस में आएंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग इसका देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंट हो जाएगा, राइट। दूसरा है व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर, the concerned state legislature retain the power to amend or repeal that law. एक बार आपने सरेंडर कर दिया वो पावर, तो फिर उसके बाद आपको उसको रिटेन और रिपील करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया। तीसरा, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स फॉर दैट स्टेट बट सच लॉज ऑटोमेटिकली एक्सपायर, है ना, वंस प्रेसिडेंट रूल्स एंड। ऐसा नहीं है, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली एक्सपायर, राइट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है, दैट इज स्टेटमेंट 1,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 249 के अंदर 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू आपको ये दिया जा रहा है ना, और ये 6 मंथ्स के लिए आफ्टर द रेजोल्यूशन के लैप्स होने के 6 महीने तक इसका आपको टेम्पररी प्रोविजन देखने के लिए मिल सकता है. इट कैन रिमेन इन फोर्स. ठीक है, दैट इज ऑल राइट. यहाँ पे आपको क्या मिला कि ये दोनों ही गलत है ना, तो ओनली वन इज करेक्ट. अब इसमें हम लोग ने क्या किया कि बेसिकली अपने पूरे के पूरे जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह लीजिए, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने गलतियां की है. सो दीज वेर द क्वेश्चंस दैट मोस्ट कैंडिडेट्स वेर नॉट एबल टू आंसर करेक्टली, राइट. We have looked at it. We have looked at different aspects of these questions, है ना. Where are the pitfalls? Where are the aspects जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं? कौन कौन से ऐसे आपको प्रोविजंस हैं जो ध्यान में रखने होंगे? कौन कौन से अभी न्यूज़ में हैं, राइट. सो ये साथ साथ में जितना क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था, इट वॉज एज मच कि भाई हमारा जो इस तरह के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका रिविजन भी हो जाए, राइट. इसको लेकर के 2-3 चीज़ें ही हैं इंपॉर्टेंट कि next open mock test conducted by the Drishti IAS is going to happen on 18th, है ना, for which you can register in the link given below. इस चीज को लेकर के ऑफलाइन सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है ये टेस्ट्स, है ना. इफ यू आर एबल टू गो देयर एंड सिट इन द फिजिकल प्रेजेंस, है ना, और वहां पे आप दीजिए, इट विल बी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर गोइंग टू फेस ऑन 24th May, राइट. अगले 132 दिन का अच्छे इस्तेमाल में से एक आपका वो बहुत अच्छा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी, है ना, इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन दैट मेन एग्जाम डे, है ना. उसके बाद दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इस चीज को आप दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, दृष्टि आईएएस इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इसे कुछ ही देर में. ठीक है, दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ख्याल रखिए, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.